In last part, we have completed the basics of binomial theorem with some example. Now we will proceed with the exercise of the NCERT. With the first question, we will solve some of the question. Then after that, you will do if you have any problem in the dot section. Okay. Now we will take the some question from the exercise first. Now this is the first question. See it. Expand each of the expression in exercise 1 to 5. 5 क्वेश्चन है, हमें वो एक्सपेंशन को सॉल्व करना है. दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सरसाइज. पूरा लिखना है ना, पहले कर दो, कैंसिल कर दो सर, क्योंकि वो we have completed in last part, that is the basics of binomial theorem with some example. Now we are going to solve the exercise of NCERT, that is the exercise 8.1 with the first question. And what is the first question? That the first question is expand each of the expression in exercise 1 to 5. 5 क्वेश्चन दिए गए, इन्हें हमें एक्सपेंड करना है. पहला क्वेश्चन है 1 - 2x की पावर 5. Then the first question is 1 - 2x का पावर 5. इसको एक्सपेंड करना है. कैसे एक्सपेंड करेंगे? कल मैंने एक डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था, क्या था हमारा? 1 - x का फॉर्मूला बताया था. 4 - x पावर है, क्या बताया था? NC0. जितना ये वैल्यू है वही इसका करना है. x की पावर 0 पहला प्लस है, दूसरा माइनस NC1 x की पावर 1 प्लस NC2 x की पावर 2. नाउ NC3 x की पावर 3 प्लस NC4 x की पावर 4 and so on. This was the formula in last video, that is the part 1. Now put the value. What the value of n? N is equal to 5. What is the value of x? X is equal to 2x. Okay. Okay. Now it may create the confusion, so we will change it. 1 minus b. It will also be b and b. Then what is the value of b? That is the 2x. Okay, put the value and get the answer. 1 - 2x का पावर 5 is equal to NC0. n का वैल्यू क्या है यहाँ पे? 5. 5C0 x का पावर 0 माइनस 5C1 x का पावर 1. नो, 2x का पावर 0. यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? 2x का पावर 1 प्लस 5C2 2x का पावर 2 माइनस 5C3 2x का पावर 3 प्लस 5C4 2x का पावर 4 माइनस 5C5 2x का पावर 5. You may see these signs plus minus plus minus plus minus. These will be in alternative manner. Okay. Solve it. 5 फैक्टोरियल में 0 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, ये क्या हो जाएगा हमारा? 1. ठीक है, ये भी 1 x में किसी का भी पावर 0 1 माइनस 5C1 को सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा हमारा? 5. सॉल्व करना मैंने कभी बताया था, इंटू 2x. और आपने पहले भी ये सॉल्व करना सीखा होगा. प्लस 5C2 ये सॉल्व कैसे करेंगे? ये हो जाएगा हमारा 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल. 3 फैक्टोरियल से कैंसिल, 5 4 जा 20, नीचे से गया 10 इंटू 4x² माइनस 5C3. इसका वैल्यू क्या आएगा? इसका वैल्यू हमारा 10 आएगा इंटू 8x³ प्लस 5C4 का वैल्यू 5 आएगा. 5 इंटू 2x 2 दूनी 4 4 4 16x की पावर 4 माइनस 5C5 का वैल्यू कितना आएगा? 1. ये कितना हो जाएगा? 32 x का पावर 5. ओके. नाउ 1 - 10x प्लस 40x² माइनस 80x³
plus 80x to the power 4 minus 32x to the power 5. Okay, this is the complete expression of 1 minus 2x over 5. This is the complete expression. Now take the second example, second question. Now you can do starting first part, same question. Now take the question from 6 to 9. That are the same question. You can take any one question from them. It is asking the question that is the 102. Takes 102 by extension. 102 की पावर 5. 5 का अभी पावर वाला हमने अभी किया था, चलो कुछ दूसरा कर लेंगे. 101 का पावर 4. दो वीडियो ये क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 8. 101 का पावर 4. 101 को ब्रेक करने के बाद कैसे लिख सकते हो? 100 प्लस 1 का पावर 4. ये किसकी इमेज में आ रहा है? a प्लस बी. कल मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था, a प्लस बी का पावर n. क्या लिख सकते हैं? nc0 a का पावर n b का पावर 0 प्लस nc1 a की पावर n माइनस 1 b का पावर 1 nc2 a का पावर n माइनस 2 b का पावर 2 nc3 a का पावर n माइनस 3 b का पावर 3 and so on. You can write up to infinite. Then check what is the value of a, that is 100. What is the value of b, that is 1. What is the value of n, that is 4. Put the value and get the answer. Put it, that is the 101. A power 4 is equal to 100 plus 1 a power 4 is equal to, put the value. What is the value of n? N is the 4. 4 3 0 a. What is the value of a? 100. 100 का पावर n. What is the value of n? 4. किसी का भी पावर 0 1 प्लस nc1 4c1 a का वैल्यू 100. 100 का पावर 3. b का वैल्यू कितना? 1. 1 का पावर 1 प्लस 4c2 100 का पावर 2, that is 1 का पावर 2 प्लस 4c3 100 का पावर 3, 100 का पावर 1 1 का पावर 3 प्लस 4c4 100 का पावर 0 1 का पावर 4. Okay, now solve it. What is the value of 4c0? How you will write? 4 factorial upon 0 factorial into 4 factorial, it will cancel each other. Both 4 factorial, numerator and denominator. Then what is the value of, that is 1. 100 का पावर 4 क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके, प्लस 4c1. What is the value of 4c1? How we will write? 4 factorial upon 1 factorial into 3 factorial. 3 factorial will cancel each other. What is the value? 4. 1 2 3 4 5 6 प्लस 4c2. इसे कैसे सॉल्व करेंगे? 4 3 जा 12. 2 से नीचे डिवाइड 6. 100 का स्क्वायर इंटू, ठीक है, 100 का स्क्वायर. ना 4c3 का क्या वैल्यू होगा? 4 इंटू 100 प्लस 4c4 का वैल्यू क्या होगा? 1. 100 का पावर 0 1, 1 का पावर 4 1. नाउ 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 plus 6 1 2 3 4 plus 400 plus 1. Now this is the simple addition you can take and get the answer. Okay, now you can solve the fourth question. 4 questions 6 7 8 9 all are the same. Now take the 11th question. It is the good question.
देखो 11th क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन को सही से पढ़ना है। 11th क्वेश्चन, फाइंड a plus b का पावर 4 minus a minus b का पावर 4, hence evaluate √3 plus √2 का पावर 4 minus √3 minus √2 का पावर 4। इसमें पहले हमें a plus b का पावर 4 minus a minus b का पावर 4 दे रखा है, फिर और वैल्यू दे रखे हैं, उनका वैल्यू पूछा गया है। इसमें क्वेश्चन में बीच में आपको देखना है हेंस। हेंस का मतलब समझ रहे हो, पहले आपको पहले वाला सॉल्व करना है, उसी के बेसिस पे उसका जो आंसर आए, आपको पूरा एक्सपेंशन नहीं लिखना है दूसरे वाले का, उसका पहले वाले का जो एक्सपेंशन आए उसी में वैल्यू पुट कर देने हैं। हेंस का मतलब ये होता है, ठीक है। तो देखो 11th वाले क्वेश्चन में कौन सा एक्सपेंशन दे रखा है, a प्लस b का पावर 4 माइनस a माइनस b का पावर 4। इसमें जो वैल्यू पूछा गया वो पूछा गया हमारा √3 प्लस √2 का पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 का पावर 4, ठीक है। इनका वैल्यू पूछा गया है। और यहाँ से आप सीधा सीधा देख सकते हो कि a का वैल्यू हमारा क्या है √3, b का वैल्यू क्या है हमारा √2, a का वैल्यू क्या है हमारा √3, b का वैल्यू क्या है √2। मतलब पहले हमें इस एक्सपेंशन को सॉल्व करना है, फिर जो पका पका लड़ुआ आ जाए, आंसर आ जाए, उसमें सीधे इसका वैल्यू पुट कर देना। आपको ये एक्सपेंशन अलग अलग नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन में हेंस दे रखा है, हेंस का यही मतलब है कि आपको पहले ये एक्सपेंशन कंप्लीट करना है, इसका जो आंसर है उसमें सीधे वैल्यू पुट कर देना है, ठीक है। तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। पहले आपको सिर्फ a प्लस b का पावर 4 इसे करो, फिर a माइनस b का पावर 4 इसे करो। ये किसकी शक्ल है, a प्लस b का होल पावर n, ये किसकी शक्ल है, a माइनस b का होल पावर n। तो करो a प्लस b का पावर n, मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, nc0 a का पावर n b का पावर 0 प्लस nc0 a का पावर n माइनस 1 b का पावर 1 प्लस nc2 a का पावर n माइनस 2 b का पावर 2 एंड सो ऑन, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला हमारा a प्लस b का होल पावर n। अब a माइनस b का होल पावर n, इसका फॉर्मूला क्या होगा, nc0 a की पावर n b की पावर 0 माइनस nc1 a का पावर n माइनस 1 b का पावर 1 प्लस nc2 a का पावर n माइनस 2 b का पावर 2 माइनस nc3 a का पावर n माइनस 3 b3 एंड सो ऑन, ओके। नाउ पुट द वैल्यू a plus b का होल पावर n, n is the value of 4। now 4c0 a का पावर n that is 4 b का पावर 0 there is no need to write plus 4c1 a का पावर 3 b का पावर 1 प्लस 4c2 a का पावर 2 b का पावर 2 प्लस 4c3 a का पावर 1 b का पावर 3 प्लस 4c4 a का पावर 0 there is no need to write because it is equal to 1 and b का पावर 4। this is the first expansion a plus b का पावर 4, right। now we are going to expand this, what the value, this formula will be used in it, okay। now 4c0 a का पावर 4 माइनस 4c1 a का पावर 3 b प्लस 4c2 a का पावर 2 b का पावर 2 माइनस 4c3 a b का पावर 3 प्लस 4c4 b का पावर 4, ओके। नाउ ओपन द ब्रैकेट 4c0 a का पावर 4 प्लस 4c1 a का पावर 3 b प्लस 4c2 a2 b2 4c3 a b3 प्लस 4c4 b4 माइनस ना 4c0 a का पावर 4 माइनस माइनस प्लस 4c1 a3b माइनस 4c2 a2 b2 प्लस
4c3ab3 minus 4c4b4. Now check the sign, minus plus minus, minus minus plus, minus plus minus, minus minus plus, minus plus minus. Okay. Now 4c0a4, 4c0a4. It will cancel. 4c2a2b2, 4c2a2b2, 4c4b4, 4c4b4. Okay. Now 4c1a3b, 4c1a3b. Now 4c1a3b. Now 4c3ab3, 4c3ab3 2 away plus 2 4c3ab3. ठीक है. Now take the example common to 4c1a3b and plus 4c3ab3. Put the value. What is the value of a? √3. A is equal to √3. What is the value of b? √2. Put the value in this solution, you will get the answer. Okay. After that, this is the mathematical part you can do. Now taking the next question. 14th question is a good question. Read it. Prove that the summation where the values of r is varying from 0 to n, 3 की पावर n NCR is equal to 4 की पावर n. ये हमें प्रूफ करना है. ध्यान देना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है. 14 3 का पावर n 3 का पावर r NCR is equal to 4 का पावर n where the r is belong from 0 to n. यदि ऐसे क्वेश्चन दिए जाएं तो उसमें हमें LHS को लेके RHS प्रूफ करना होता है या RHS लेके LHS प्रूफ करना होता है. यदि ऐसे पॉसिबल ना हो तो इसमें तीसरी कंडीशन भी बनती है, आधा LHS सॉल्व करो, आधा RHS सॉल्व करो, दोनों को मिला दो. 3 तरीके से हम प्रूफ कर सकते हैं. ठीक है. चलो इसे हम किसी एक तरीके से लिखते हैं. मेथड दोनों बताएंगे, दोनों से बता सकते हैं कि ये इधर से भी सॉल्व हो सकता है और इधर से भी सॉल्व हो सकता है. पहले हम LHS लेंगे, LHS से हम RHS निकालेंगे, फिर हम दूसरे मेथड में RHS लेंगे, RHS से हम LHS निकालेंगे. दोनों मेथड से करेंगे. देखो टेकिंग LHS. फर्स्ट मेथड, पहले मेथड में हम LHS ले रहे हैं, LHS से RHS निकालेंगे. समेशन ऑफ 3 का पावर r NCR where the values of r is belong from 0 to n. Expand it. 3 का पावर r, that is 3 का r का वैल्यू कैसे वेरी करना है? 0 1 2 3 4 up to n. These are the countable number, these are the natural number where the r is belong. Now 3 का पावर 0 NCR NC only NCR, yes. 3 का पावर 0 NCR, r का वैल्यू यहाँ पे कितना है हमारा? 0. दूसरा अगेन 3 का पावर 1 इंक्रीज होता है, 3 का पावर 0 3 का पावर 1, n का कोई वैल्यू नहीं दे रखा है, NC1. नाउ 3 का पावर 2 NC2 प्लस 3 का पावर 3 NC3 प्लस 3 का पावर 4 NC4.
and so on up to infinity or up to n, not infinity, because r is varying from 0 to n, so this expression will go is up to n. ये कहाँ तक जाएगा हमारा 3 का पावर n n c n, ठीक है। अब देखो ये हमारा 3 का पावर 0, ये हमारा 3 का पावर 1, ये हमारा 3 का पावर 2, ये हमारा ये 3 का पावर 3। देखो जो हम एक्सपेंशन लिखते हैं, जैसे कि चलो मान लिया हमने 4 लिख दिया, 4 को हम कैसे लिखेंगे 1 प्लस 3, 3 का पावर n है, वो 4 का पावर n है, तो हम कैसे लिखेंगे 1 प्लस 3 का होल पावर n। कल मैंने एक फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला याद करो, 1 प्लस x का पावर n क्या था, nc0 x का पावर 0 प्लस nc1 x का पावर 1, nc2 x का पावर 2, nc3 x का पावर 3। क्या इस एक्सपेंशन की और इस एक्सपेंशन की शक्ल मिल ली है? मिल ली है तो देखो जरा nc0, तो यहाँ पे nc0 है, x का पावर 0, 3 का पावर 0, nc1 x का पावर 1, 3 का पावर 1, nc2 x का पावर 2, 3 का पावर 2। तो आप देख रहे हो कि हमारा और सब तो मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे x है, यहाँ पे 3, हर जगह पे जहाँ भी x दिख रहा है वहाँ पे हमें 3 शो हो रहा है, इसका मतलब x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3। तो यहाँ पे 1 प्लस x की पावर है, तो क्या लिख देंगे 1 प्लस 3 का पावर n, जिसे हम कैसे लिख सकते हैं 4 की पावर n, ठीक है। दूसरे मेथड को हम आगे करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। थैंक यू।